So I hope orientation session सर्वांनी केलंय. Everybody has watched the orientation session of 3rd of June, huh? In which we had discussed about what? About sociology, obviously, and how we are going to deal with the subject basically in the 4 month, how we will proceed with the subject, and what all tasks we will have to do in these 4 months, including answer writing, teaching, everything that we had discussed. Okay, right? So I hope everybody has gone through the session and everybody now know how the roadmap would be with respect to this session. Yes or no? Right? If anybody still have the confusion, they can ask me after the session. Okay, right? What is the agenda for today? I would say कि agenda for today, और ऐसे कह सकते हैं कि okay, हाँ, काय ठेवू bilingual, हिंदी मराठी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, तो आज का जो एजेंडा है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस वीक का जो एजेंडा है, द नोट यू हैव with you right now, that is sociological terminologies. Why we will be starting with these things, sociological terminologies? Because this is the crux of the subject basically, right? What I mean by crux of the subject, whatever terms you read in this topic या फिर in this note, those topics are right, you have to write in your answers. Whatever answer or whatever topic you have, or with respect to any specific answers, you have to include any xyz terminology from this unit into your answer. Then only your answer will look like as a sociology wala answer. Otherwise it will be like कि कोई random सा answer है, या फिर it will be like a GS वाला answer. Okay, so please make sure that you will learn by heart all these terminologies. Okay, how you have to refer these terminologies from the for the next 2-3 days or next 2-3 session, we'll have to discuss these terminologies. We'll discuss these terminologies with the references, with the examples, with the thinkers, everything. Okay, it will be like कि डे टू डे एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा, और प्लस जो एग्जांपल्स हम लोग एक्चुअल एग्जाम्स में लिख सकते हैं वो एग्जांपल्स में भी आपको बताऊंगा. ओके, ठीक है? So this is the purpose of this document, and at the end of the session, at the end of the today's session, I will give you one task as well that you have to do. Okay, with respect to this document only. Every day what we'll do, obviously we won't be starting answer writing from today or tomorrow, है ना? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले दिन से थोड़ी ना आंसर राइटिंग करेंगे. क्या लिखोगे? कुछ नहीं पता है अभी तक. ओके, राइट? ना कंटेंट है, ना आंसर कैसे लिखना है, ना क्वेश्चन पता है, तो वी वोंट बी राइटिंग अ आंसर, बट we will be writing something else. Okay, from the day one, from today itself. Okay, what that would be, that I'll tell you after the session. Okay, every day you have to complete the task, and as I guaranteed you, जो मैंने orientation session में भी आपको कहा था कि this is my personal guarantee, you just do what I say according to the syllabus. I'll definitely make sure that your subject will get completed within these 4 months and with the batch itself. Okay, right? It is the only condition that you have to do whatever as I say. Okay, so let's start with the terminologies या फिर terms. मैंने आपको कहा अभी बताया कि क्या इसका मीनिंग है या फिर इसका सिग्निफिकेंस है टर्मिनोलॉजीज का. इसमें से कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था किसके बारे में, ओरिएंटेशन सेशंस के वक्त ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैड डिस्कस, हाँ, वन मोर थिंग यू हैव टू डू, what you have to use the marker highlighter for every session. You will get the note. Okay, यानी अभी अगर अगले 2-3 सेशन ये नोट चलने वाली है तो you have the note right now. Okay, and whenever we will start with unit 1, so beforehand you will have the note of unit 1 in with you. Okay, so you will have to keep the marker with you, है ना? तो जो जो मार्कर और पेन रखना है आपके साथ में, जो जो मैं यहाँ बताते जाऊंगा वो मार्क करना है. Okay, keywords for that you have to mark here so that when you go home you will revise that only. Okay, वो भी मैं आपका काम कम कर दूंगा. Right, so we'll mechanize the thing so that your work at home will reduce drastically, significantly. Okay, right? And हर बार मैं जब जब कहूंगा वो तो लिखना ही है आपको कि ओके प्लीज राइट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन दिस, तो उसके सामने लिखना है. लेकिन इट इज योर जॉब ऑल्सो दैट यू कैन राइट सम एडिशनल डेटा एंड कंटेंट अकॉर्डिंगली. ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. राइट, सिलेबस सबने देखा है क्या? हाँ, I have given you the syllabus copy on the very first day. I hope you have. Yes, yes, I am using the English. I hope you have gone through the syllabus. Yes or no?
सिलेबस के लिए भी मैंने एक आपको टास्क दी थी. I hope you are doing it. Very few people are there. Online candidates भी very few people are there who are sending me. Okay, the syllabus copy. Those who have writing. Okay, कितने लोगों ने 5 बार कम से कम लिख के हो गया है syllabus? How many people are there that you have written 5 times? Very few are there. Okay, so please do it. Okay, मैं I am very frank about it. किसी I won't be responsible if you are not doing the task. Right? Please do it. कितना भी अगर आपको लगे कि सर ये तो क्या स्कूलिश बच्चों के जैसे आप कर रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है, लग रहा है फर्क नहीं पड़ता है मुझे. आई वॉन्ट योर मार्क्स इन द सब्जेक्ट. ओके, सो प्लीज डू इट. राइट, वट एवर आई एम सेइंग, प्लीज डू इट. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशियोलॉजिकल टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज. तो पहले तो स्टार्ट ही करते हैं सोशियोलॉजी से. तो सोशियोलॉजी तो पता है सबको, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कशन किया था. व्हाट डू मीन बाय सोशियोलॉजी? नाउ यू टेल मी, व्हाट डू मीन बाय सोशियोलॉजी? Our session will be what, in a conversation format. Okay, I'll speak 90% of time, but I'll expect 10% at least from you within these 2 hours. Okay, right? तो 10% तो आपको बात करनी ही पड़ेगी. सोशियोलॉजी तो पिछले सेशन में डिस्कस किया था ना. व्हाट इज सोशियोलॉजी? so tell me what is sociology. एग्जैक्टली exactly, हम लोगों ने वो डिस्कस किया था कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. राइट, सिंपल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो स्टडी ऑफ सोसाइटी में क्या क्या स्टडी करेंगे हम लोग? विल स्टडी द सोशल रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर विथ सोसाइटल कंटेक्स्ट. ओके, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, कल्चर क्या होता है, और प्रोसेसेस क्या होती है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट करती है, दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके, तो बेसिकली जो हम लोगों ने पिछले सेशन में भी डायग्राम एक ड्रॉ की थी, वही डायग्राम वापस यहाँ रिपीट कर सकते हैं हम लोग. कौन सी डायग्राम? दिस इज योर इंडिविजुअल, यस और नो, और दीज आर योर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वी हैव. ठीक है, राइट? Group of individuals interact with each other, yes or no? So study of individual and study of group, ठीक है, and their interaction, yes or no? Interaction between individual, not only interaction, आगे जाके ये दो कीवर्ड डिफाइन करने हैं, interaction and relation. What is the difference? What do you think? What is the difference between interaction and relation? सबके सामने सोशल सोशल लगाना है. सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन, ठीक है, सोशल ग्रुप. सोशल इंडिविजुअल नहीं होता है, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है. ओके, सोशल ग्रुप, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन, राइट? So what is the difference that we have to see in the next topic? We'll see the difference between interaction and relation. On the superficial side they'll look the same, कि सेम ही है सर, इंटरेक्शन और रिलेशन इसका मतलब तो सेम ही होता है ना, बट देयर इज अ डिफरेंस. विल सी दैट. तो बेसिकली सोशियोलॉजी इज व्हाट, कि ये इंटरेक्शन और रिलेशन आपको स्टडी करने हैं. These interaction are and relations, what they are made of, or they are structured of what? Values and norms of society. They are structured from values and norms of society, yes or no? ओके, तो वैल्यूज और नॉर्म से समझ में आता है. ओके, यस प्लीज सेट. इकडे बसून जा किंवा इकडे बसताना बसू देते. तो वैल्यूज और नॉर्म से आपको समझ में आता है. सो देन वैल्यूज एंड नॉर्म्स, हु डिफाइन दीज वैल्यूज और नॉर्म्स? I have told you that day, yes or no? Who defines these values and norms, or who design these values and norms? So अरे social institutions, no? Yes or no? पिछली बार बात की थी ना, इकोनॉमी, फैमिली, yes or no? Religion, these are social institutions who design these norms. Okay, yes or no? Norms and values. तो ये सारा डिस्कशन करना होगा ना, yes or no? We have to study everything and we have to study it in a what? Systematic and scientific manner. That way we say study of society in a systematic and scientific manner, or study of society in a scientific way, that is sociology basically. Yes or no? Right? Clear? Clear है?
यस और नो? दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, जो हमने अभी यहाँ पे भी वही लिखा है। सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पे मैंने आपको दूसरा टर्म क्या यूज किया है, या फिर दूसरा डिस्कशन क्या है, दूसरा हेडिंग है कि व्हेन आफ्टर डिफाइनिंग द सोशियोलॉजी विल हैव व्हाट, हिस्ट्री ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी एज अ separate subject inquiry. What do you think when when this subject has emerged? वहां पे दिया है। Okay, Shruti, I think you can understand Hindi as well because we have a Hindi candidate also here. Okay. Emergence of sociology as a separate study or separate discipline. What do you think? Why would this anybody will invent this subject as a separate inquiry when we have philosophy as a separate subject? Okay. When we have economy as a separate subject, when we have science as a separate subject, then why would anybody need this subject called sociology to study the society in a scientific way? Because there must have been some events has happened in the society which have shaken the society societal structure, या फिर जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बात की, सारी चीजें अभी जो डिस्कस की, तो इन सारी चीजों पे किसी ना किसी इवेंट का इम्पैक्ट हुआ होगा। ओके, तो उससे आपके इंस्टीट्यूशन बदल गए होंगे, इंस्टीट्यूशन पे इम्पैक्ट हुआ होगा, नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे इम्पैक्ट हुआ होगा, इंटरैक्शन रिलेशंस पे इम्पैक्ट हुआ होगा, इंडिविजुअल ग्रुप्स पे इम्पैक्ट हुआ होगा, और इसकी वजह से देयर कुड हैव बीन समथिंग मस्ट हैव चेंज्ड। ओके, तो वो जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको स्टडी करना जरूरी है। और ये चेंजेस कब आप स्टडी कर सकोगे? जब आप पहले सोसाइटी का स्टडी कर सकोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जिसे समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। ओके, सपोज अभी यू टेल मी द फेनोमेना कॉल्ड कोविड हैड हैपेंड, यस और नो, है ना? तो डोंट यू थिंक द सोसाइटी हैज चेंज्ड? चेंजेस क्या हुए हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन डोंट यू थिंक द सोसाइटी हैज चेंज अ लिटिल बिट? जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया फेनोमेना था। ओके, वो बहुत ज्यादा इम्बाइब हो गया अभी हमारे सोसाइटी में। यस और नो? इवन द कोविड हैज पास्ड बट स्टिल पीपल आर देयर हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। यस और नो? डू यू सी दोस पीपल? राइट, वी सी दोस पीपल। तो जो लोग ऑफिस में बैठते थे वो घर पे बैठने लगे, तो अगर घर पे बैठने लगे तो द स्ट्रक्चर ऑफ होम हैज चेंज ना? यस और नो? राइट, तो ये तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और कोविड के तुरंत बाद, या फिर जब कोविड हुआ, कोविड इरप्ट हुआ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा क्योस भी था। ओके, सो व्हेन सम इंसिडेंट हैपेंड इन द सोसाइटी लाइक कोविड, देयर इज अ व्हाट, फर्स्ट डायरेक्टली चेंज नहीं होता है। पहले क्या होता है? पहले देयर इज अ फेनोमेना कॉल्ड chaos in the society, yes or no? Right, and what then? So अगर कोई chaos हो रहा है तो वो chaos मैनेज करने के लिए पहले आपको हुआ क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना? yes or no? उस chaos के सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है वो समझने होंगे, और तभी आप देन यू विल एस्टेब्लिश एन ऑर्डर अगेन इन द सोसाइटी विद द चेंज। आर यू गेटिंग इट? अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो और सिंपल समझाता हूं। अगेन आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, मोर सिंपल देन दिस। व्हाट एग्जांपल आई कुड गिव यू? सिंपल, कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं, ठीक है, राइट, एंड इफ आई एम गोइंग एंड दैट इज माय डेली रूट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैं डेली वहां से ट्रैवल करता हूं। वन डे सडनली क्या होता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? तो समथिंग हैज चेंज्ड, यस और नो? कुछ ना कुछ केओस हुआ है। ओके, तो वो केओस क्या है? तो केओस समझने से अच्छा है वो क्यों हुआ है वो समझना है। ओके, एंड देन व्हाट आर द, तो मुझे समझना पड़ेगा, जो कोई उसका स्टडी करेगा उस फेनोमेना का, उसे ये समझना पड़ेगा कि अरे सर क्या हुआ है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे थे, ये तो 10 साल से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, कितने स्पीड से जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ये सारी चीजें, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। यस और नो? राइट, तो यानी क्या हुआ, दे आर द ऑब्जर्वर और द रिसर्चर इज अंडरस्टैंडिंग द established phenomena first, then he will think about the impact of the event on the established phenomena, yes or no? फिर वो डिस्कस करेंगे ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, अरे हेलमेट तो था इनका, तो फिर हेड इंजुरीज कैसे हुई,
तो पहले हेलमेट था, ये तो समझना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? तो यानी पहले एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर क्या है, पहले एग्जिस्टिंग सोसाइटी क्या है, वो समझना आपको जरूरी है। उसके बाद फिर फेनोमेनाज क्या हुए सोसाइटी में, और उन फेनोमेनाज की वजह से केओस क्रिएट हुआ, और उस केओस की वजह से चेंजेस हुए। यस और नो? ये प्रोसेस है। तो और ये चेंजेस जो है, फिर दोज चेंजेस आर गुड फॉर सोसाइटी और बैड फॉर सोसाइटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये तो सोसाइटी का ही स्टडी हो गया ना, सो यू नीड अ सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन टू स्टडी दिस। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? तो यही चीज हुई थी, कहां हुई थी? यूरोप में। ओके, राइट? you have we'll have to discuss that in your paper 1 unit 1, see the syllabus. I have messaged you, okay? मैंने मैसेज किया था कि every day you have to carry the syllabus copy, okay? There is no single day that is a bible for you, okay? Every day you have to carry the syllabus copy, whatever I have given you. Every day I'll punch you, okay? Open your syllabus, see the note, okay? So do you have what is the unit 1 says? हाँ, modernity and social change in Europe and emergence of sociology, right? So something has changed in Europe, okay? Because of XYZ events, something has changed in Europe, and therefore there was a need to study the society, okay? So what were those events? So those events were from the commercial revolution to the industrial revolution that we have to study. कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, फिर एनलाइटनमेंट हुआ, फिर रेनेसा हुआ, फिर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ये सारे फेनोमेना स्ट्रीमलाइन एक तरफ से होने की शुरुआत हुई, और उसके बाद सोसाइटी में chaos क्रिएट हुआ। एंड देयरफॉर यू नीड टू स्टडी द ऑर्डर इन द सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, ये सारी चीजें स्टडी करना जरूरी हो गया सोसाइटी में। एंड देयरफॉर देयर वाज अ इमर्जेंस ऑफ sociology as a subject, ठीक है, in Europe, right? In the what 19th century, ठीक है, right? 19th century में कैसे हुआ, किसने किया, ये सारा डिस्कशन यूनिट 1 में है, वो वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इमरजेंस समझ में आ रहा है? यस और नो? ये सारी चीजें अभी के लिए आपको फेस वैल्यू पे लेनी है। यस और नो? राइट? फेस वैल्यू समझते हो ना, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू इकोनॉमी में सीखते हैं हम। फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू इज यू हैव अ 10 रुपीज वाला नोट, ओके? वो 10 रुपीज वाले नोट, उसको अगर आप बेचने को जाओगे तो 10 रुपीज का नोट है क्या वो, उसकी वैल्यू 10 रुपीज है क्या? दैट इज अ पीस ऑफ पेपर, ओके? तो पीस ऑफ पेपर की कीमत क्या होगी? 1 पैसा, 2 पैसा। तो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, बट द फेस वैल्यू इज रिटर्न देयर 10 रुपीज बिकॉज यू हैव अ गवर्नर का साइन। हाँ, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहते हैं ना। यस और नो? थोड़ा इकोनॉमी का भी प्रमोशन, ठीक है, राइट? तो इट इज लाइक दैट। तो एनीवेज, तो हिस्ट्री का इमरजेंस हुआ, सॉरी सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ यहाँ पे इन द 19th सेंचुरी, राइट? इन द 19th सेंचुरी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द 19th सेंचुरी रिस्पॉन्स टू द प्रोफाइंड सोशल चेंज brought by the industrialization, urbanization, enlightenment, XYZ phenomena, okay? और बहुत सारे फेनोमेनास थे, वो सारे फेनोमेनास हमें स्टडी करने हैं यूनिट 1 में, ठीक है? वो उस वक्त स्टडी करेंगे सारे, ठीक है? यहाँ पे ओवरव्यू लेना है हमें, ठीक है? तो फिर डिस्कशन ऐसा है सर, ठीक है कि इमरजेंस तो हो गया सोशियोलॉजी का, तो बस फिर ठीक है, खत्म बात। तो अभी क्यों स्टडी करना है सोशियोलॉजी का? उस वक्त कर लिया ना, इमरजेंस हो गया, वो सारे फेनोमेनास भी हो गए। सपोजेडली कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, जुलाई जुलाई में ही हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? वी आर डिस्कसिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, राइट? तो जुलाई 1789, तो अभी तो आप 2025 को डिस्कस कर रहे हो सर, तो अभी हो गया, सोशल चेंज भी हो गया, सोसाइटी का स्टडी भी हो गया, तो अभी क्यों डिस्कशन करना है सोशियोलॉजी का? डू यू फील और डू यू थिंक that there is a social change happening continuously because of XYZ phenomena? हर बार आपको कुछ रेवोल्यूशन ही होने की जरूरत है क्या सोशल चेंज के लिए? नो। यू टेल मी द एग्जांपल कि सर ये फेनोमेना है कि उसकी वजह से भी सोशल चेंज हो सकता है, और उससे कि वो जो चेंज हुआ है वो स्टडी करने की जरूरत है, और उसके लिए फिर हमें सोसाइटी का स्टडी करना जरूरी है। कैन यू टेल मी सम फेनोमेना? हाँ, वो तो हो गया, अभी पुराना हो गया वो,
ओके, एक एग्जांपल एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है, राइट, तो उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। अरे नहीं रे, ग्लोबलाइजेशन इज द फेनोमेना यू कैन थिंक ऑफ। ग्लोबलाइजेशन से चेंज नहीं हुआ क्या सोसाइटी आपका? यस और नो? हुआ ना, तो सोसाइटी का स्टडी करना होगा ना। यू विल हैव द फीचर ऑफ व्हाट ग्लोबलाइजेशन, मैंने बताया था, यस और नो, राइट, मैकडोनल्ड का एग्जांपल बताया था मैंने, राइट। देन लेटेस्ट, क्लाइमेट चेंज, डू यू नो दिस फेनोमेना कॉल्ड क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज नाम तो सुना है, नाम तो सुना होगा कम से कम, क्लाइमेट चेंज, राइट। क्या हो रहा है? सीजन्स आर वेरिंग, यस और नो? कभी सुना था क्या मई के महीने में बारिश हो रही है? नो, एंड इट विल लास्ट लॉन्ग टिल द दिवाली, यस और नो? तो दिवाली तक बारिश हो चल रही है, तो ये तो कभी सुना ही नहीं था सब। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? योर सोइंग पैटर्न हैज चेंज, तो सोसाइटी चेंज नहीं होगी क्या? राइट। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लाइफ में इंटरवीन कर रहा है, कर चुका है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव इम्पैक्ट ओवर सोसाइटी। इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट है यानी सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, तो यू नीड टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। इसीलिए तो क्वेश्चंस है ना आपको एग्जाम में, राइट। तो एवरी फेनोमेना विल हैव द इम्पैक्ट ओवर इंडिविजुअल, विल हैव द इम्पैक्ट ओवर ग्रुप्स, ठीक है, ओवर सोसाइटी, एंड देयरफॉर यू नीड टू स्टडी दैट, and therefore there will be a change every time. So you need to study that वो change transformation में convert हो रहा है, और that change is with the continuity, yes or no? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था शायद, ओरिएंटेशन नहीं में दिया, नहीं भी दिया होगा तो अभी दे रहा हूँ, कि जैसे कि बहुत सारे चेंजेस हो गए सर। वी हैव लिबरलाइज्ड आवरसेल्फ टू द ह्यूज एक्सटेंड, हम बहुत ज्यादा लिबरल है हमारे थॉट प्रोसेस में, एआई वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बट स्टिल वी स्टिल होल्ड विद द व्हाट, और वी स्टिल फॉलो द कास्ट एंडोगामी, यस और नो? वी कैनॉट मैरी इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, यस और नो, राइट। तो ये क्या है? कास्ट तो ट्रेडिशनल फीचर है सोसाइटी का, बट दैट इज स्टिल एविडेंट इन द 21st सेंचुरी ऑल्सो। So it is what? It is a continuity of tradition. So we have changed a lot, but still we face the continuity also. So it is the change with continuity. So you need to study that. Yes or no? समझ में आ रही है बात? तो therefore it is not like कि सर वो हो गया यूरोप में तो अभी क्या जरूरत है स्टडी करने की? अभी जरूरत है। Okay? We need to study the sociology every day in a way. थिंकर्स भी डिस्कस करेंगे, तो थिंकर्स अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट लाइक डर्कहीम, हु एक्सप्लोर्ड द सोशल सॉलिडेरिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव डिस्कस करने की कोशिश की है। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। यस, ई लर्निंग वी कैन टेक दैट एग्जांपल आल्सो। तो जैसे कि सोसाइटी में सॉलिडारिटी कैसे मेंटेन होती है, हाउ द सॉलिडारिटी इज बीइंग मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। ओके, तो इमाइल डर्कheim कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में अलग फॉर्मेट था सॉलिडारिटी मेंटेन करने का, मॉडर्न सोसाइटी में अलग फॉर्मेट है। वो क्या है वो जब डर्कheim देखेंगे तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉलिडारिटी मेंटेन कैसे होती है वो डिस्कशन है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है? कैन यू टेल मी दिस वर्ड डिवीजन ऑफ लेबर? व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? नॉट नेसेसरीली स्किल बेस्ड ना, अनस्किल्ड और स्किल्ड सेपरेट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबर। अरे हाँ, ठीक है ना, सिंपल कि अगर यहाँ पे यू हैव 10 पीपल हियर, ठीक है, out of these 10 people 2 people are doing specific task, 2 people are doing specific task, 2 people are doing specific task। एक कंपनी है, 10 लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, 10 लोगों में से वर्क डिवाइड हो रहा है। 2 लोग फाइनेंस देख रहे हैं, 2 लोग एचआर देख रहे हैं, 2 लोग रिसेप्शन देख रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल, यस और नो, इन अ वेरी सिंपलिस्टिक टर्म। डायरेक्टली क्लास वगैरह वो बाद में देखेंगे, ठीक है। so this is in the simplistic term is a division of labor, yes or no? So you have to study, why you have to study division of labor in the society? Can you tell me why this person called Emil Durkheim has studied the division of labor in the society? Can you guess? मराठीत सांगितलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही। हा, व्हेरी गुड, बरोबर आहे।
डिवीजन ऑफ लेयर, अभी अभी के लिए वो वर्ड नहीं यूज करेंगे हायरार्की वगैरह, वो तो है यूज करना ही है हायरार्की स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन अभी के लिए डिवीजन ऑफ लेबर will tell you what will give you the idea about inequality in the society. Yes or no? Why this specifically these two people are placed in that position only? Okay, why these two people are superior and why these two people are inferior? So we will understand the inequality wala format in the society. Therefore, you need to understand the division of labor, and this person has understood that. Okay. फिर इसमें एक और चीज आती है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है. यस और नो? ओनली फीमेल विल बी देयर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. यस और नो? वी सी दोज एग्जांपल ना. ओके, डोंट टेक इट पर्सनली. ओके, राइट. why we majority, चलो मेजोरिटी यूज करता हूँ, ओनली छोड़ दो, मेजोरिटी वर्ड यूज करते हैं. ओके, why in the majority terms we see the female in the hospitality industry? Because that is a sexual division of labor. Okay, समझ में आ रही है बात? सो इट इज लाइक दैट. इसीलिए फिर वो स्टडी करेंगे, दैट इज अ सोशल फेनोमेना वी हैव टू स्टडी, है ना. तो इमल डरकheim ने वो स्टडी किया है, बिकॉज दैट विल क्रिएट inequality, that will create disparity. Okay, yes or no? And that will create hierarchy also, that will create stratification also, and this stratification and hierarchy will give the birth to phenomena like deprivation, ओके, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी. कहाँ है ये टॉपिक्स सिलेबस में? कहाँ है ये टॉपिक सिलेबस में? हार्ड कॉपी नाही घेतली का? घे ना त्याच्याकडनं, मोबाईल मध्ये कधी कधी बघून व्हायचं. येस, करेक्ट. हाँ, यू हैव यूनिट नंबर 5 स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की. यस और नो? राइट. पेपर 1 यूनिट नंबर 5 स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की. व्हाट दिस सिग्निफाइज? तो क्या लिखा है पहले? ए टॉपिक जो है वो इनइक्वलिटी है ना. तो इनइक्वलिटी विल क्रिएट stratification, hierarchy, inequality, deprivation, exclusion and poverty. Why these words are like this only? नाही का तो तिथे? तिथे जा केबिन मध्ये, माझा जो डेस्क आहे ना त्याच्या बाजूला तिथे ठेवलेले आहेत बघ सगळ्या नोट्स, तिथे शोध इंग्लिशची. सो that is the factor phenomena we have to study. So we'll understand these terminologies. Are you getting it? Yes or no? समझ में आ रही है बात? तो ये डिस्कस करना है सारा. फिर कार्ल मार्क्स भी क्या बताता है? कार्ल मार्क्स ऑल्सो इन अ वे टेल्स अस द इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी थ्रू द व्हाट? क्लास क्लासिफिकेशन. ओके, और क्लास फेनोमेना और क्लास कॉन्फ्लिक्ट. ओके, ये जो क्लासेस फॉर्म होती है, क्लास इज लाइक व्हाट? क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी. यस और नो? तो क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी में क्लास की तरफ से कि फिर क्या अनइक्वलिटीज क्रिएट होती है वो डिस्कशन करना है हम. राइट. सापड़ लगा? हाँ, तो ये डिस्कशन करेंगे. तो ये सारा सोशियोलॉजी में यही सीखना है हमें. देन एग्जांपल की सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल, है ना. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ दिस. यस और नो? राइट. सो दिस इज नथिंग बट योर सोशियोलॉजी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? तो सोसाइटी तो क्या हो ही गया ना. सोशियोलॉजी जब डिस्कस किया तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज सोसाइटी. यस और नो? मीनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी इन अ वेरी सिंपल टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? Society is nothing but group of individuals. Yes or no? Group of individual who share. अभी ये कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, who share, क्योंकि अभी हम लोग डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं ना. तो लेमन टर्म्स काफी हो गए अभी ओरिएंटेशन सेशन के लिए. नाउ लेट्स एंटर इनटू द सोशियोलॉजिकल थिंग, है ना. राइट. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर्स द कॉमन कल्चर, कॉमन टेरिटरी एंड social structure. These three are very important formulas. See, you have to share the common geography or common territory as well, then only you will become a society. When we use the word society, we don't generalize the term, we use Indian society, Western society, African society. Okay. और जब सिर्फ इंडिया का भी डिस्कशन करना हो तो उसी वक्त भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में महाराष्ट्रियन सोसाइटी, यूपीएन सोसाइटी, तमिलनाडु सोसाइटी. ओके, ऐसा डिस्कशन होगा. सो व्हाट दिस वर्ड डिफाइंस? टेरिटरी. ओके,
Do you think the territory is that much important when it comes to society? Definitely. Why? Hmm? Exactly, very good. Culture, tradition, values, norms are different, no? Yes or no? Right? So इसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपका, अमेरिकन सोसाइटी है, तो अमेरिकन सोसाइटी इज व्हाट? दे आर मोर लिबरलिस्टिक सोसाइटी, दे आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी. Okay, what do we mean by the American dream? American dream is nothing but everybody should get a equal chance to move upward in the social ladder. Yes or no? यहाँ पे वैसा है क्या इंडिया में? सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है ना कि एवरीबॉडी शुड गेट अ इक्वल चांस टू मूव अपवर्ड इन द सोशल लैडर, बट इज इट रियली द फैक्ट? नो. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ restriction based on our caste, gender, religion, race, ethnicity. ये इन फैक्टर्स की वजह से हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. बट अमेरिकन सोसाइटी इज मोर लिबरल, दे आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक. यस और नो? राइट? इसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी अलग है, इंडियन सोसाइटी अलग है. इंडियन सोसाइटी इज कास्ट सिस्टम, हिस्टोरिकली स्ट्रक्चर्ड, तो वहां पे हायरार्की है, स्ट्रैटिफिकेशन है. यस और नो? राइट? तो इसीलिए आपको सोसाइटी अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत है. ओके. एंड व्हेन वी स्टडी सोसाइटी, तो अभी एक चीज यहाँ से शुरू करते हैं. क्या? पहले सेशन में मैंने पर्सपेक्टिव्स आपको बताए थे. यस और नो? कि वी हैव टू स्टडी 6 पर्सपेक्टिव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिविस्ट टू पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्टिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेनोमेनोलॉजिस्ट, एथनोमेथोडोलॉजी और फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न. ठीक है? तो ये पर्सपेक्टिव्स हमें जो डिस्कस करने हैं, उनमें से जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी क्या करना है, आज से शुरू. अभी थिंकर्स का नाम तो लेना शुरू हो गया है ना, राइट? तो आज से एक चीज शुरू करेंगे. क्या करेंगे? व्हाट विल डू? विल जस्ट राइट, विल जस्ट हैव द पेजेस. ओके, ऐसा एक पेज लेंगे, हर एक पेज पे एक पर्सपेक्टिव का नाम लिखेंगे, पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव, एंड यू विल राइट द नेम ऑफ द थिंकर्स ओनली हियर. ओके, विल लीव वन पेज फॉर दैट. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज विल हैव द नॉन पॉजिटिविस्ट. तो इनमें से कौन से थिंकर्स है? तो ये मेथड करने से थिंकर्स समजना, लर्न करना, रट्टा मारायचं थोडंसं सोपं होऊन जातं. थिंकर्स येते लक्षात? ओके, सो विल डू दॅट. कळलं? हा. तो मग आता सी what I told you कि those who, again very simple phenomena, those who study the top down approach, they are positivist. मैंने पिछले सेशन में कहा था, who all are positivist? पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? अरे नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, कौन होते हैं इसका मतलब क्या है? इंसान होते हैं, दूसरे कौन होते हैं? ठीक है? तो पॉजिटिविस्ट आर बेसिकली द पीपल और द scholar who study the society as a whole, who ignore the individual behavior and who try to study the society as a whole. Yes or no? Right? Who try to study the society as a whole. एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है? Who try to, where is your pen? अभी ये हिंदी में नहीं बता बोलते आगे, प्रवचन ऐकायचं नाही आपल्याला. ठीक है? ओके. तो हु स्टडी द सोसाइटी एज अ होल, इसका मतलब क्या है? हु स्टडी सोसाइटी एज अ होल, they don't consider the individual behavior, okay, for giving any societal theory. Yes or no? They don't take into the consideration the individual behavior as such. Okay, इसका मतलब क्या है individual behavior? कि they'll just give you the top down approach कि society क्या है, social institution क्या है, उसका impact क्या है individual पे, they'll give you that. Okay, they say कि please don't refer the individual का behavior because individual का behavior is the same and individual का behavior is according to the social norms and values set by the social institution. Yes or no? Yes or no? तो if you have a family as an institution, तो सारे families में, okay, there is one, suppose we'll take an example,
यहाँ पे सन है और यहाँ पे फादर है, ठीक है। तो फादर और सन का रिलेशन क्या होगा? तो दे बोथ आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली and their role is defined, father and son, so therefore they have that particular what behavior, which will be what दो word use किए थे, universal, yes or no, and objective, yes or no, ये दो वर्ड यूज किए थे याद आ रहा है कि नहीं? they have the objective behavior and universal behavior. Universal का मतलब क्या होता है? You go wherever you want, in whichever society. If you have to study the dad and son wala relation na, it will be same. You study Indian society, you study American society, you study what, any sorts of society, the behavior will be same and according to the values of family as an institution. Okay, so that is universal. And objective is, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? देयर इज नो ग्रे शेड, मैंने बताया था ना, आइदर इट इज ब्लैक और व्हाइट, यस और नो, राइट। तो ये होता है पॉजिटिविस्ट। तो ये पॉजिटिविस्ट वाले टॉप डाउन अप्रोच होता है इनका। तो इनमें अभी कौन कौन आते हैं? तो अगर सी, सो अभी ये क्यों बताया मैंने अभी, बिकॉज व्हेन यू हैव टू स्टडी द सोसाइटी, देन ऑब्वियसली कौन आएगा? यहाँ पे इंडिविजुअल का डिस्कशन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आपके आएंगे पॉजिटिविस्ट। So Emile Durkheim is the most important prominent name in the positivist wala list. Okay, you must know this thing. Yes or no? Understood? Emile Durkheim is the most prominent name in this list, positivist wala. डिटेल उनको डिस्कशन करना है हमें, लेकिन अभी के लिए याद रखने के लिए समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला बताया मैंने? यू विल मेक द लिस्ट पेज, ओके। पॉजिटिविस्ट, इमाइल डरकheim इज द प्रोमिनेंट नेम, ठीक है। यस और नो? अंडरस्टूड। मैक्स वेबर भी आते हैं। मैक्स वेबर कभी पॉजिटिविस्ट में आते हैं, कभी नॉन पॉजिटिविस्ट में आते हैं, बिकॉज मैक्स वेबर डील्स विद बोथ द थिंग, ओके। दे आर इन बिटवीन, दे आर जस्ट ही इज एक्टिंग लाइक अ bridging gap between positivist and non-positivist. Okay, why I am saying so, I'll tell you with the examples in the next slide. ठीक है, okay. तो जब जब सोसाइटी एज अ होल का बारे में डिस्कशन होगा, तो यू विल हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविस्ट, those when we don't consider the individual behavior. Okay, yes or no, right? समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? 80%, 120%, ठीक है। हाँ, सो दिस इज योर सोसाइटी। देन नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन यू हैव द नेक्स्ट टर्म कॉल्ड सोशल रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय सोशल रिलेशन? एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल्स वापस डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज सोशल रिलेशन, राइट? यस और नो? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिलेशन? यू टेल मी, क्या होता है रिलेशन? जो एग्जांपल लिया, व्हाट, सन एंड फादर, relation between them is a social relation, yes or no? yes or no? हाँ, तो that relation, तो अभी याद रखिए कि ठीक है, आपने यस कहा है, हाँ, कि relation between them is a social relation. तो क्या है डेफिनेशन? a social relation is a connection, interaction between individuals and groups that shaped by social norms, roles and expectations. These three are the important keywords, ठीक है, because that will differentiate the next terminology, that is social interaction. ठीक है, these three are very important keywords here. social norms, roles and expectation है क्या यहाँ पे? see, connection and interaction between these two individual shaped by social norms. What social norms? What kind of, what sorts of social norms? Son have to respect the father, that is social norm, yes or no? अभी रेयर हो चुका है, लेकिन that is still a social norm, yes or no, right? So that is a social norm. Roles we have, the father and son are the roles they have.
Expectation, they also have expectation. Son has a certain expectation from father, father has a lot many expectation from son. Yes or no? बरोबर. तो या इसी इससे जो डिफाइन होगा, that becomes your social relation. Clear है? Yes or no? It is not only son and father, in everybody else. Okay, स्टूडेंट एंड टीचर, रोल्स है डिफाइन, एक्सपेक्टेशन है, यस और नो, सोशल नॉर्म्स है, फॉलो करते हैं ना सोशल नॉर्म्स. पिछले लेक्चर में बताया था ना कि भी व्हाट, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू विल रेज अ हैंड, यस और नो, दैट इज अ सोशल नॉर्म वी फॉलो व्हिच इज अनरिटन. आर यू गेटिंग इट? राइट. So these are the social norms we follow. This is your social relation. Now you tell me, see, कैन यू थिंक, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, टीचर स्टूडेंट, फ्रेंडशिप नेटवर्क्स, कलीग्स, तो ये इनके बीच में जो सोशल रिलेशन होता है वो सोशल रिलेशन. सिंपल. नाउ यू टेल मी वेदर दिस सोशल रिलेशन is which type of perspective is better to understand a social relation, positivist or non positivist. पॉजिटिविस्ट ने क्या बताया? इग्नोर्स द इंडिविजुअल, करेक्ट. कि सर देयर इज दिस फैमिली, ओके, फैमिली नंबर 1, तो इनमें जो सन और फादर का रिलेशन होगा, so that will be universal. Okay, but see, that is what, that is a relation between you and me. When I say the relation between you and me, that may differ. Yes or no? So we have to take into account the individual. Are you understanding it? To understand that particular phenomena, वही सन समझने के लिए, वही फादर समझने के लिए आपको उस सन और फादर का बिहेवियर पता होना जरूरी है. ये सुनो, जैसे कि एक एग्जांपल कि ये फैमिली नंबर 1 है, ये फैमिली नंबर 2 है, तो कैन वी से कितने भी आपको मैं पॉजिटिविस्ट के एग्जांपल दे दूं, पॉजिटिविस्ट का बेस्ट चीजें बता दूं, फिर भी डोंट यू थिंक कि ये सन फादर का जो रिलेशन है और ये सन फादर का जो रिलेशन है वो अलग अलग हो सकता है ना? ये सुनो, yes or no? Agreed. So which method you need to study? So therefore you need to take into account the individual to understand that family and to understand the difference between these two families. Yes or no? So यहाँ पे पॉजिटिविस्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे नॉन पॉजिटिविस्ट काम करेंगे कि अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल. इसीलिए फिर आते हैं हमारे दूसरे थिंकर, दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड अर्विन गॉफमन. ठीक है. तो नाउ यहाँ पे जो मैंने हम लोगों ने लिखा है कि नॉन पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं, ये नॉन पॉजिटिविस्ट. तो नॉन पॉजिटिविस्ट आर द पीपल हु व्हाट study the individual, study the individual and not the society in entirety. Okay, study the individual. अगर individual है तो obviously इनका अप्रोच क्या होगा? Approach will be bottom up approach ना, because individual lies at the end of the society, no? Yes or no? पहले इंडिविजुअल है, फिर ग्रुप है, फिर सोसाइटी है, फिर सोशल इंस्टीट्यूशन है. यस और नो? राइट. तो इंडिविजुअल इज एट द सेंटर, एट द बॉटम, देयरफॉर दैट विल बी अ बॉटम अप अप्रोच. आर यू गेटिंग इट? एंड विल इट बी द साइंटिफिक वन? कैन यू अचीव, यहाँ पे जो दिखा है तीसरा पॉइंट जो लिखा है, कैन यू अचीव यूनिवर्सलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी? अरे यहीं पे तो था, फैमिली नंबर 1 में सन और फादर का रिलेशन अलग है, फैमिली नंबर 2 में अलग है, तो यूनिवर्सल कहाँ हो गया? यू कैनॉट अचीव द यूनिवर्सलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. यस और नो? देयरफॉर नॉन पॉजिटिविस्ट सेज sociology is not a science, sir. Yes or no? Because you cannot study society in a scientific way, you have to study, take into the account the individual person. Are you getting it? समझ में आ रहा है बात? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है अभी के लिए, थोडं तरी समजतंय का? सी, हे काही 3 ओळीत दिस विल नॉट गेट कंप्लीट इन 3 लाइन्स.
you have to study this approach in depth. We have it in syllabus. आएगा? Yes or no? तो वो डिटेल डिस्कशन करना है, कम से कम 2 लेक्चर तो पॉजिटिविज्म में ही चले जाएंगे. ओके, तो ऐसा मत समझिए कि ये खत्म पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिव. नो, this is just a start. I'm just giving you the glimpses of that. Okay, clear? तो sociology is not science, sir, ये बताते हैं, because please take the individual into consideration. and ये कहते हैं कि sir sociology is a science. ठीक है? yes or no? क्लियर है? तो अभी नॉन पॉजिटिविस्ट जब जब आएंगे तो 2 नाम तो फिक्स हो गए अपने. कौन से है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड और अरविंद गॉफमन, है ना? अरविंद नहीं है, ठीक है? एरविन है, अरविन, इरविंग, कुछ भी कहो. ओके, अरविंद नहीं है, बस इतना याद रखो. ठीक है? व्हाट दे आर सेइंग कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू सोशल इंटरेक्शन, है ना? तो अगर जब सेल्फ की बात हो रही है तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना? यस और नो? सेल्फ की बात हो रही है तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना? तो इंडिविजुअल की बात हो रही है यानी नॉन पॉजिटिविस्ट की बात हो रही है. हाँ, वो तो है, वो देखेंगे बाद में आईएनवी वाला डिस्कशन. ठीक है? तो सोशल रिलेशन समझ में आ रहा है? क्लियर है? व्हाट इज सोशल रिलेशन? तो सोशल रिलेशन अभी ये देखिए, ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिकल अलायंसेस, ये सोशल रिलेशन डिफाइन करते हैं ना? सो दीज आर द रिलेशन एग्जांपल्स ऑफ कंटेम्पररी पीरियड्स का सोशल रिलेशन. यस और नो? पहले होता था क्या? ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म. हाँ, बम्बल होता था क्या? और कौन से होते हैं? हाँ, नाही माहिती तुम्हाला? इतके अभ्यास हुएत का तुम्ही? ठीक है, तो ऐसे एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है. सोशियोलॉजी सीख रहे हैं हम लोग. ओके, राइट? इट इज सेम एज दैट ऑफ बायोलॉजी, है ना? राइट? सो वी सी एवरीथिंग इन सोसाइटी. दैट इज, ये कोई टैबू चीज थोड़ी ना है. यूज तो हर कोई करता है, फिर बताना क्यों नहीं है? ओके, इट इज नॉट अ टैबू, राइट? सोशियोलॉजी है ना डिस्कशन, तो करना पड़ेगा सर. एनीवेज, समझ में आया सोशल रिलेशन? नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सोशल इंटरेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस? सेम ही हो गया सर, रिलेशन और इंटरेक्शन में क्या फर्क है? हाँ, डोंट रीड देयर, यू जस्ट टेल मी व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी डिफरेंस? और आपने अगर ऐसा भी कहा कि सेम ही है सर, कोई डिफरेंस नहीं है, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. विल डिस्कस दैट एज वेल. नो सर, देयर इज नो डिफरेंस. क्या होगा डिफरेंस? व्हेन आई से रिलेशन, 3 वर्ड बताएं, कौन से? रोल, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन. इंटरैक्शन क्या होता है? आई डोंट हैव एनी expectation when I interact. Okay, I may or may not have the role when I interact. Okay, may or may not. Yes or no? अभी यहाँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आप हो, मैं फैकल्टी टीचर हूँ. ओके, सपोज one of my nephew is sitting here and he or she is doing UPSC. So will he or she consider me as a teacher? No. अबे नातेवाईक आहे ना, भाचा आहे ना माझा. हा, येस नो? तो तर म्हणेल काय, मामाला दररोज बघतोय मी घरी, इथे फक्त असं बदललेलं आहे, काय टेन्शन आहे? बरोबर का? येस नो? तो दिस इज द थिंग. तो इसी वजह से, एंड दैट विल बी देन बिकम्स इंटरेक्शन. दैट इज नॉट अ रिलेशन. रिलेशन इज डिफरेंट. ही इज माय कजिन, दैट इज अ रिलेशन, because I have a role, I have an expectation, and our relation is what? Binded by some social norms. But interaction is a casual thing, na? Interaction is a short term wala thing. Relation is a long term wala thing. Yes or no? Right? So that is nothing but interaction. Interaction refers to the ways in which individual engage with one another, exchange information, mutually influence each other's behavior. So it may be verbal, non-verbal as well. Yes or no? नॉन वर्बल भी हो सकता है ना?
यस और नो? जैसे कि मैंने अभी कहा रेफर दिस, तो इसका मतलब अरे हाँ सर बोल रहे हैं कि अरे सिलेबस में देखो। नॉन वर्बल, यस और नो? राइट। सो इंटरेक्शन में भी वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स भी होते हैं, एक्सप्रेशंस भी होता है, शेयर्ड एक्टिविटीज भी होती है। so this definitely that will shape the relation. Okay, so interaction is the shortest form of relation, we can say. Are you getting it? Interaction is the shortest form of relation. hmm? जब कैफे में दो फ्रेंड्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट अ रिलेशन। यू विल से सर वो तो फ्रेंड्स है ना, ठीक है ना, फिर भी तो वो क्या है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन इज इंटरेक्शन बेसिकली, वो कैजुअल है ना। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन के दो टाइप हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यस और नो? फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं ना। फॉर्मल कहाँ होता है इंटरेक्शन? ऑफिस में। इनफॉर्मल कहाँ होता है? इन अ प्राइवेट स्पीयर। पब्लिक स्पीयर, प्राइवेट स्पीयर। पब्लिक स्पीयर में आप फॉर्मल होंगे इंटरेक्शन, ओके। फॉर्मल रिलेशन नहीं होते हैं, फॉर्मल पहले इंटरेक्शन होता है, बाद में फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं। yes or no? So first comes the interaction, then comes the relation. Please understand this. Clear? Yes or no? तो अभी हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। तो अभी सर इंटरेक्शन डिस्कस करना है तो क्या करेंगे? पॉजिटिविस्ट लेंगे या नॉन पॉजिटिविस्ट लेंगे? वाई? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हो गया फिर गॉफमन एंड मीड, राइट। बस आ गया आपको सोशियोलॉजी, क्या है सोशियोलॉजी, अंडरस्टूड? है, अभी बहुत कुछ है। तो अंडरस्टूड रिलेशन एंड इंटरेक्शन। अभी ये यहाँ पे मजा आएगा। social institution, the next phenomena is social institution. Now what do you mean by institution? हाँ, यस, काय झालं विचारा ना, काय असेल? हाँ, ओके, ठीक है, we'll discuss that. See, the what she is saying कि there are two friends x and y, ठीक है? ठीक है सर, the friendship is what? Friendship is okay, I accept this कि friendship is relation, no problem, because friendship has what? वो three keywords: roles, norms, expectation, right? Okay, done. So it is relation, agreed. But now when you want to study a social phenomena, okay, इसीलिए वहां क्या लिखा था? Friends conversing in a cafe, okay, right? So when you want to study the this social phenomena, तो phenomena आप क्या study कर रहे हो वो important है। So when you are studying the phenomena called conversation between two friends in the cafe, then it becomes interaction. Okay, and when you just want to study the what bonding between two friends, then you are studying the relationship. Understood? Yes or no? समझ में आ रही है बात? डाउट हो तो वहां तुरंत क्लियर करना है, ओके? Please don't get pile up with your doubts because that will not, I mean, get converted into the positive thing, है ना? समझ में आ रही है बात? Clear. Now let's see the social institution. What do you mean by social institution? हो तो गया social institution, अभी तो बताया ना। What are the social institution? ये डायग्राम है ना। Who decides the values, norms of the society? Basically, who decides how the society runs? Yes or no? Social institutions are the entities who decide how the society runs. Simple. Yes or no? Then now you tell me
कि who will study the social institutions, positivist or non positivist? पॉजिटिविस्ट। सोशल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल देते हैं, क्या है एग्जांपल? पिछले लेक्चर में तो बताया था, फैमिली इज द कोर सोशल इंस्टीट्यूशन, यस और नो, राइट? देन रिलीजन इज अ कोर सोशल इंस्टीट्यूशन, देन एजुकेशन इज वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। बाकी भी है, बस फिर पहले फिलहाल तीन। नहीं नहीं, वो अलग है, वाई मिक्स। हाँ, दैट विल डिस्कस। ओके, सो कौन डिस्कस करेगा सर सोशल इंस्टीट्यूशन? तो यहाँ पे हमें दिया है, तो primarily social institutions will be studied by the positivist. Why? Because those are institutions, they will have the influence on the individual, no? They are framing the raw rules and regulation of the society, so that will have the impact on the individual, yes or no? So positivists primarily study the social institutions. Non-positivists don't touch that social institution, because non-positivists don't believe in this thing, this phenomena called कि social institution will define some norms and regulation and then the individual will follow that. No, that is a false analogy for non-positivist. Yes or no? Right? तो फिर दूसरा कौन है? दूसरे एक है फंक्शनलिस्ट। ओके, एक स्कूल ऑफ थॉट था क्या फंक्शनलिस्ट? थ्री स्कूल ऑफ थॉट वी हैव, यस और नो? पर्सपेक्टिव लिए, स्कूल ऑफ थॉट लीजिए, तो व्हाट आर दीज functionalist? What are these functionalists? The word is self-explanatory, I think. ये नहीं, functionalist, ठीक है? टालकोट पार्सन तो बंदे का नाम है, ठीक है? Functionalist. What do you mean by functionalist perspective? Functionalists are the people who study the functions of social institutions. Okay? Very simple term. बाद में बहुत डिटेल देखना है, लेकिन अभी के लिए study the functions of social institutions. What do we mean by functions of institutions? पिछले सेशन में डिस्कस किया था, डू यू रिमेम्बर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली? हाँ, वेरी गुड। हाँ, rearing and caring of children, socialization of children, that is the primary function of the institution called family. तो ये फंक्शन कौन स्टडी करेगा? फंक्शनली स्टडी करेंगे, ठीक है? राइट? तो ये हो गया आपके फंक्शनलिस्ट। तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट में फिर अभी एक पेज फंक्शनलिस्ट को देना है। फंक्शनलिस्ट में ज्यादा नाम नहीं है, बट द प्रोमिनेंट नेम इज टालकोट पार्सन्स एंड यू हैव आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। Do you have these in your syllabus? हाँ, यूनिट नंबर 4, सी द सिलेबस, रॉबर्ट के मर्टन है। हाँ, तो रॉबर्ट के मर्टन एंड टालकोट पार्सन। मर्टन बेसिकली इज अ स्टूडेंट ऑफ पार्सन्स, ठीक है? शिष्य होते थे पार्सन यांचे, टालकोट पार्सन यांचे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस विल बी, देयर आर, दे सेज बेसिकली, प्राइमरीली बस इतना ही एक बताता हूँ और फिर देन विल शिफ्ट। दे से there are two types of functions. Every institution has two types of functions. First is your manifest function and second is your latent function. Manifest is what? Specific function of that institution, and latent function is what? Ignored function of that institution. Let's take an example again. Education, family बहुत हो गया, education का example लेते हैं। Function of an social institution called education. What is the function? What do you think? Education का क्या होता है function? एजुकेशन एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, उसका फंक्शन क्या होगा? हाँ, एजुकेशन देने
नहीं, ऑब्वियसली टू गिव द एजुकेशन ना, राइट। एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन का फंक्शन क्या होता है? No, Prerna, that is not the thing. Okay, I'll answer that as well. Okay, just remind me at the last of the session. I'll answer that, Prerna. Okay, good question by the way. Positivism, sorry, positivism. Manifest function and latent function. Education as a social institution. What do they do? Do they will provide a knowledge to individual? Yes or no? Give knowledge to individual. That is a function of education. Simple, right? But that is what? That is the manifested function. That is expected basically. Manifested का मीनिंग अभी सी क्या होता है, इंग्लिश टर्म्स बहुत इजी होती है, बट दीज पीपल आर थिंकर ना, so they have to prove the world that they are thinkers, so they use such a fancy terms. Okay, इसकी वजह से हमें हेडेक है, yes or no, right? अभी सिंपल है, एक्सपेक्टेड फंक्शन अनएक्सपेक्टेड फंक्शन, खत्म बात। लेकिन मैनिफेस्ट एंड लैटेंट, ओके, तो अगेन दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ, दे वी आर अमिताभ बच्चन ऑफ दिस इंडस्ट्री, है ना, तो इसीलिए एनीवेज मैनिफेस्ट एक्सपेक्टेड गिव द नॉलेज। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड function of education? Student are getting values, yes or no? Values are not taught in the school, but student are getting those. Student are socializing. Socialization is not a function of education, but they are making friends, yes or no? They are making relations, yes or no? Okay, व्यवहार ज्ञान समजतंय ना मुलांना, बरोबर आहे का? राईट, हे का बरं समजतंय? स्कूलमध्ये समजतंय, घरात राहून समजणार आहे का? नाही समजणार, पण ते करणं हे काम आहे का शाळेचं, स्कूलचं? नाही. दॅट इज व्हॉट? अनएक्सपेक्टेड लॅटेंट फंक्शन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्लियर है, राइट? तो ऐसा बहुत कुछ डिस्कशन करना है, बट अभी के लिए फंक्शनलिस्ट, those who study the functions of the institution, those are functionalists. We have two prominent name, Talcott Parson and R.K. Merton. ठीक है, तो जब सोशल इंस्टीट्यूशन की बात आएगी सर, तो ऑब्वियसली टालकोट पार्सन भी डिस्कस होंगे। क्लियर है? तो सोशल इंस्टीट्यूशन की दो कैटेगरीज, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंस्टीट्यूशन? क्या डिफरेंस होगा? व्हाट डू यू थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी में? बेसिकली प्राइमरी इज जब वी टेक अ बर्थ, तभी से जो इंस्टीट्यूशन इंपैक्ट करना शुरू होते हैं, दोज आर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। देयर आर 3 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए बताया, बस लिखने के लिए नहीं। लिखने के लिए क्या लिखोगे? दोज आर फंडामेंटल सोशल स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ एसेंशियल रोल इन द इंडिविजुअल्स अर्ली सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इंडिविजुअल की आइडेंटिटी फॉर्मेशन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? फैमिली, रिलीजन। डू यू थिंक रिलीजन, यहाँ पे लिखा है, गलत भी लिखा हो सकता है, ठीक है, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, डेलिबरेटली रॉन्ग लिख सकता हूं ना मैं, तो फैमिली वो तो समझ में आता है। एजुकेशन, कैन यू थिंक एजुकेशन इज फॉर अर्ली सोशलायझेशन अँड आयडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल? हा, नो का बरं? म्हणजे अरे मग 6 वर्षाचा झाल्यावर टाकत नाही का शाळेत? हा, मग सो अर्ली म्हणजे मग किती अर्ली पाहिजे? डायरेक्ट बाय बर्थ? बर्थ वेळेचं कसं काय? ओके, अर्ली याचा अर्थ काय घेताय तुम्ही म्हणजे? तो and religion, these are basically 3 primary institutions. Okay, ठीक है सर। लेकिन now what is secondary institution? Secondary institution who helps the primary institution basically, है ना? अर्ली हो गया, अभी now you have become adult, तो अभी कौन आएगा? जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, पॉलिटी। बाय बर्थ पॉलिटी का क्या लेना देना है? इकोनॉमी का क्या लेना देना है? इकोनॉमी का तो इंडिया में, तो इंडियन सोसायटी में तो ज्यादा ही लेना देना नाही है, राइट? 30 वर्षाचे होऊन जातो आम्ही तरी, एक तो पापा की परी है किंवा मेरा लाल है, बरोबर? एवरेज एज ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट हु इज गेटिंग क्लियर्ड थ्रू दिस सिस्टम इज 29 years. ओके,
I don't say this thing, UPSC says it, okay, in their annual report. तो अगर ऐसा है तो 30 साल तक कोई टेंशन नहीं है, वी हैव द बैकअप विद अस, ओके। ये सुनो, दूसरे सोसाइटी में वैसे नहीं है, यूएस सोसाइटी में 15 साल का हो गया, चलो अभी निकलो घर से, कुछ भी करो, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ये तीन है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हु सपोर्ट्स द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, ठीक। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, सी यहाँ पे जब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का डिस्कशन है और जब आइडेंटिटी फॉर्मेशन का डिस्कशन करना है, इसीलिए हम लोगों ने नॉन पॉजिटिविस्ट भी डिस्कस किए हैं यहाँ पे, yes or no, because individual identity will vary, no। एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन का काम है टू गिव द एजुकेशन और टू गिव द नॉलेज, दैट इज ओके, बट हाउ द इंडिविजुअल विल परसीव दैट नॉलेज, इट वेरीज, नो। हर कोई संत महात्मा बनता है क्या स्कूल जाने से, ये सो नो। सबसे बड़े और सबसे क्रूकेड, सबसे क्या कह सकते हैं, वर्स्ट क्रिमिनल कौन है, जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, ये सो नो। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। So it is not necessary that education will produce only a good people, yes or no, right। तो it is like that। इसीलिए आइडेंटिटी अगर फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब है नॉन पॉजिटिविस्ट भी आएंगे डिस्कशन में, इंडिविजुअल वेरी होगा, और फिर पॉजिटिविस्ट तो आएंगे ही, क्योंकि वो तो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, ओके। सोसाइटी इसका, तो दिस इज इट। तो ये हो गया प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। जैसे हम लोगों ने कहा, विच ऑल आर द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, who supports and complement to the primary institution, those are secondary institutions basically। क्या क्या आएंगे एग्जांपल्स, कौन से एग्जांपल्स हैं? हेल्थ केयर बेसिकली इज द secondary institution we can think of, then गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, these all are what, who supports the primary institution, yes or no, do they support basically, ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी। तो secondary institution are additional social structure that support and complement the primary institution, right, सिंपल। तो अभी अगर इंस्टीट्यूशन की बात है तो टालकोट पार्सन तो आएंगे, राइट, क्योंकि उसका फंक्शन डिस्कस करना है, लेकिन मैक्स वेबर भी है यहाँ पे। तो मैक्स वेबर कौन है सर? इज ही अ पॉजिटिविस्ट? Is he a positivist? The answer is no, right? Is he a non-positivist? Again, the answer is no. Then who is he? कौन है वो? तो he is the bridge, जैसे कि मैंने कहा है ना, he is the bridge between positivist and non-positivist। इसे उसे हम लोग कहते हैं what? We use the phenomena, they are interpretativist, interpretativist, this is the spelling, मैक्स वेबर। जब ये दो लोग झगड़ते रहते हैं, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट, की सोशल इंस्टीट्यूशन यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच, ये कहते हैं पॉजिटिविस्ट। नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं नहीं सर, सोशल इंस्टीट्यूशन लेट स्टडी फ्रॉम द टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, राइट। हाँ, तो ये कहते हैं कि सर ठीक है, छोड़ दो बात, दोनों को देते हैं, लेट्स कंसिडर बोथ अप्रोचेस, ओके। बट व्हाई इज द नेम इंटरप्रिटेटिविस्ट? व्हाई इट इज नॉट लाइक मिडल अप्रोच वगैरह, ऐसा क्यों नाम नहीं है? व्हाई इज द नेम इंटरप्रिटेटिविस्ट? देयर इज अ रीजन टू इट, ओके। ये क्या कंसिडर करते हैं? सी, these people consider pure facts, okay, and these people will consider pure values, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड मैक्स वेबर से कि सर
if you want to give any theory, if you want to propagate any theory, please consider fact plus values both. ऐसे में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना. लेट्स टेक अ एग्जांपल. मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन के वक्त एग्जांपल दिया था. माय हैंड इज शेकिंग. यस और नो? ओके, राइट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. व्हाट इज दैट एग्जांपल? नाउ वी ऑल गो टू अ पार्टी. हाँ, एक फंक्शन है, वेडिंग है ना. वहां पे हम सब लोग गए हैं वेडिंग में. एंड इट इज लाइक, ये भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको? नहीं, ओके, ठीक है. तो हम सब लोग पार्टी में गए हैं, वेडिंग में गए हैं, वेडिंग फंक्शन में. किसी दोस्त की शादी है. एंड देयर यू हैव द फूड काउंटर. ओके. and you all are there with bride and groom, and I just escape there and I go to the food counter. Okay, and I'll have the plate of gulab jam with me. ठीक है? Okay. So now what is this? I am eating a gulab jam. Okay, without telling you, without asking you, है ना. और अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं डायरेक्टली वहां पे चला गया और मैं गुलाब जाम खा रहा हूँ. राइट? अंडरस्टूड द फेनोमेना? हाँ. So now you have to understand this social reality. Why people behave like this? Why people like me behave like this? Okay. There is a third person called sociologist who wants to study this phenomena. Okay. ये सारे ग्रुप को छोड़ के अकेला क्यों खा रहा है? Let's understand this social phenomena. ठीक है? Right? So then what he thinks, तो मैं जो खा रहा हूँ वो तो सबको दिख रहा है आपको. Yes or no? So this is what? This is a fact that I am eating the gulab jam. No one can deny that. Can you deny that? No, because that is a fact. Okay. तो पॉजिटिविस्ट क्या कहेंगे? पॉजिटिविस्ट विल टेल यू दैट if he the person is eating the gulab jam before the marriage is happening, लग्न लागायच्या पहिलेच जर खाऊन राहिला, त्याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हा अतिशय हावरट माणूस आहे, फक्त खायला आलेला आहे, याला लग्नाशी काही देणं घेणं नाही. बरोबर आहे का? येस और नो? असाच अर्थ होतो ना. हा अर्थ कोण काढेल? पॉझिटिव्हिस्ट. की फिक्स मीनिंग आहे. Meaning to the social phenomena is fixed. If that person is eating before the marriage, then it is, he is there just to eat the gulab jam. Okay. Yes or no? हा clear है message. So this is what top down approach. Yes or no? तो meaning काय काढलं कळलं? Now comes to non-positivist. Non-positivists are saying ki, okay, you want to study that phenomena na? If that person is eating gulab jam, go and ask that person, sir, what is the reason? शादी तो होने दो, बाद में आपको खाने के लिए है ये सारी चीजें. So go to that person and ask his reason. So then he will tell you the reason. So he will tell you according to what? His values. Yes or no? He will tell you the reason that, sir, I am a diabetic person and I need something to eat before 7 p.m. Now it's already 8 p.m. Yes or no? So the perception changed. Right? So when the sociologist ask me and then give the thesis, non-positivist. लेकिन दूसरा बंदा आएगा फिर आप में से और, अरे सर ही खा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, चलो शादी होगी तब होगी, खा लेते हैं थोड़ा सा. ओके, बट योर रीजन इज डिफरेंट. देन दैट सोशियोलॉजिस्ट कम टू यू आल्सो एंड आस्क यू. तो आप क्या कहोगे? आप तो नहीं कह सकते कि वी हैव अ डायबिटीज है. आप क्या कहोगे? तो वो तो फिर, अरे क्या बात कर रहे हो, 20 साल का है तू, कैसे डायबिटीज है तुझे? ओके. सो यू विल से कि नहीं सर ऐसे ही खा रहे हैं, पसंद है मुझे. ओके. तो दैट इज योर रीजन. ओके. तो व्हाट वैल्यूज यू ड्राइव? You have a value called greed. Yes or no? So your value is different than mine. That is non-positivist. Clear? Now what is this interpretativist? तो ये बंदा कहता है, क्या है another type, ठीक है. तो ये बंदा कहता है कि सर, दोनों का डिस्कशन करते हैं. इससे क्या हो गया? थेसिस चेंज हो गया ना. पॉजिटिविस्ट इज रिजल्ट चेंज हो गया ना. पॉजिटिविस्ट ने दूसरा कंक्लूजन लिया, नॉन पॉजिटिविस्ट ने दूसरा कंक्लूजन लिया, तो इससे सोशल रियलिटी चेंज हो गई. पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? पॉजिटिविस्ट ने सेम कंक्लूजन कर दिया, यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव, that if any person is eating before marriage, that person is a greedy person. Simple. Positivist. Yes or no? Non-positivist, reason are different for everybody.
वी कैन नॉट कम टू द कॉमन कंक्लूजन। आर यू गेटिंग इट? ये इनका कहना है। नाउ दीज आर सेइंग कि अरे ऐसा नहीं, कॉमन कंक्लूजन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, थियरी प्रपोज करनी है ना। तो लेट्स इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द एक्ट, meaning of the social action called eating gulab jam. Eating gulab jam in public is what? Social action, no? Yes or no? Max Weber talks about social action, right? So it is a social action. So Max Weber says ki it is a fact that person is eating. So the sociologist is saying ki now I will interpret by observing various people who all are eating the gulab jams. If there are, so तो वो यहाँ पे इस चेयर पे वो बैठ चुका है सोशियोलॉजिस्ट, वो बस ऑब्जर्व कर रहा है फूड कोर्ट पे, गुलाब जाम के काउंटर पे वो देख रहा है सिर्फ, और वो देख रहा है कि ओके अभी तक शादी को अभी 1 घंटा है, तो कितने लोग वहां पे आ रहे हैं शादी से पहले और खा रहे हैं गुलाब जाम, एंड ही इंटरप्रेट्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज। यस और नो? कि इतने, अगर सिंपल तो इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, अगर बहुत ज्यादा लोग आके गुलाब जाम खा रहे हैं शादी से पहले, इसका मतलब क्या है कि शादी वालों ने बहुत लेट कर दिया है शादी में और लोग भूखे हैं। यस और नो? दिस इज इंटरप्रिटेशन मेड बाय दैट सोशियोलॉजिस्ट, देयरफॉर इंटरप्रिटेटिविस्ट, क्योंकि वो फैक्ट भी कंसीडर कर रहा है और वैल्यूज भी कंसीडर कर रहा है, वैल्यूज ऑफ दोज पीपल। यस और नो? दे आर फीलिंग हंग्री इज देयर वैल्यू, बट दैट इज बीइंग व्हाट? तो उस भीड़ में शायद 2-4 ऐसे होंगे जो ग्रीडी होंगे, जिनको भूख लगी भी नहीं है, लेकिन अभी यार सब जा रहे हैं तो चलो खा लेते हैं गुलाब जाम। यस और नो? लेकिन हुआ क्या, कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ कर सके हम लोग। यस और नो? इनका कॉमन कंक्लूजन था लेकिन वो गलत था। यस और नो? कंप्लीटली बायस्ड था, राइट? इनका कॉमन कंक्लूजन तो कुछ था ही नहीं, बट इनका है इंटरप्रिटेटिव। इसका यहां पे सब्जेक्टिविटी कहां आ रही है? जस्ट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल रिसर्चर पर्सपेक्टिव। यस और नो? इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी नहीं है, जो रिसर्चर है बस उसकी ही सब्जेक्टिविटी आ रही है। समझ में आ रही है बात? ही इज इंटरप्रिटेटिंग, नो, कि व्हाई दीज मेनी पीपल आर ईटिंग गुलाब जाम बिफोर द मैरिज। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? समजतंय का नक्की? हा, नाही समजलं? हा, बऱ्याच लोकांना पुढे जाऊन आगे जाके इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है, इंटरप्रिटेटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। तो सर ये दोनों सेम ही है, नहीं है दोनों सेम। यहाँ पे बस ये एक चीज याद रखो, नॉन पॉजिटिविज्म में वो जो रिसर्चर है, वो रिसर्चर इंडिविजुअल को जाके पूछ रहा है एंड अकॉर्डिंगली सोशल रियलिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे वो वहीं बैठ के इंटरप्रेट कर रहा है, देयरफॉर इंटरप्रिटेटिविस्ट। यस और नो? और फिर वो इंटरप्रेट करते वक्त जो वैल्यूज है वो किसकी वैल्यूज ले रहा है? बस खुद की वैल्यू ले रहा है, बस खुद की वैल्यू कंसीडर कर रहा है, वो सबकी वैल्यूज नहीं कंसीडर कर रहा है। The values of researcher will come into the picture only, and not of the values of all the people who are involved in research. Understood? Yes or no? Easy है? तो बस याद रहेगा अभी गुलाब जाम। हाँ, जब जब गुलाब जाम खाओगे तब याद आएंगे फिर अभी मोहित सर, है ना? राइट? क्लियर? डन? तो हाँ, इसीलिए फिर यहाँ पे when we go and study what इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए स्पेशली, तो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में मैक्स वेबर भी हमें डिस्कस करने हैं, हु इज इंटरप्रिटेटिविस्ट, बिकॉज सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में आप इंपैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी डिस्कस करते हो, और उसके साथ साथ उस इंपैक्ट, इंस्टीट्यूशन का इंपैक्ट यूनिवर्सल नहीं होता है, यू टेक द कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ रिसर्चर एज वेल। यस और नो? क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? हाँ, जड झालंय का? नाही ना? करायचं ना कंटिन्यू? सी वी आर दैट मच लिबरल कि यू कैन डायरेक्टली टेल मी कि सर बहुत हो गया, अभी ऊपर से जा रहा है, ओके? सो रुक जाएंगे फिर हम लोग उसी पर। जड झालंय का? नाही ना? जायचंय ना पुढे? हाँ, ओके। सो अंडरस्टूड इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी, सेकेंडरी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट, नेक्स्ट वर्ड इज योर वैल्यूज। अभी तो वैल्यूज के बारे में तो इतना डिस्कस कर ही लिया सर,
अभी वैल्यूज का क्या डिस्कशन है? वैल्यूज पता है अभी सबको क्या होता है वैल्यूज? वैल्यूज आर नथिंग बट डीपली हेल्ड बिलीफ अबाउट व्हाट इज गुड, व्हाट इज डिजायरेबल, यस और नो? व्हाट इज गुड, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, बिलीफ किसके होंगे? किसके होंगे? इंडिविजुअल, यस और नो? beliefs are with respect to individual, yes or no? What is good, what is desirable and what is important in life. Values are shared by members of society, guide the individual, collective behavior, ये तो ठीक ही है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मैंने कहा, वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडिविजुअलिज्म इज द प्रोमिनेंट वैल्यू दे होल्ड। यहाँ पे वैसा नहीं है। अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन as the value we have in the conservative society called India, yes or no? बरोबर है का? राइट। तो मैक्स वेबर, जैसे कि मैंने कहा अभी ये यहाँ पे एक ये स्टडी करते हैं। अभी आप कहोगे कि सर वैल्यूज है तो मैक्स वेबर कैसे? तो मैक्स वेबर डिस्कस करता है ना वैल्यूज को, राइट। कंसीडर बोथ फैक्ट्स एंड वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे मैक्स वेबर का हमें डिस्कशन करना है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जब हम डिस्कस करते हैं तो कैपिटलिज्म हैज फ्लरिश्ड अ लॉट इन द वर्ल्ड, यस और नो? इट इज अ फैक्ट, yes or no? But that fact is driven by the values called Protestant ethics. There is a religion called Christianity. हाँ, do you know that religion? हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट है। क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट है, कौन से? फर्स्ट इज प्रोटेस्टेंट, सेकंड इज कैथलिक, यस और नो? ये दोनों सेक्ट में से जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है, वो सेक्ट मैक्स वेबर कहता है कि द religious leader of Protestant sect is Saint Calvin, ठीक है। That Saint Calvin propagate the phenomena or preaching like work is worship, you have to work 24/7, कोई रिचुअल्स मत करो, ओके कोई मंदिर मत बनाओ, कोई कुछ मत करो, बस अपना काम करो, कर्म ही पूजा है, ओके दैट ही सेज। और जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, उतना ऊपर वाला खुश होगा। दिस इज द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ही प्रोपोगेट। तो इसीलिए वो जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो वही करते हैं फिर, और इसी वजह से कैपिटलिज्म फ्लरिश हुआ है वहां पे। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो रिलीजन इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। समझ में आ रही है बात अभी के लिए एटलीस्ट, यस और नो? तो इसीलिए ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं मैक्स वेबर के दौर। संत कैल्विन, सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, सेंट मिराज, सेंट कैल्विन, ठीक है। दैट विल हैव टू डिस्कस, डिटेल है ना, वो सिलेबस में तो है मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक्स, वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए समझ में आया है? तो दिस वैल्यू हैज टू टाइप्स, टू और वी कैन से फोर टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज योर यूनिवर्सल वैल्यू एंड स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पे दिया है ना, नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। व्हाट आर द टाइप्स? यूनिवर्सल वैल्यू एंड specific value. What do you mean by universal and specific, sir? नाम में ही है ना मीनिंग, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यूनिवर्सल वैल्यू इज व्हाट? द वैल्यू विच इज यूनिवर्सल। जैसे कि वहां एग्जांपल दिया है, आपको दिया है क्या एग्जांपल? यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, यस और नो? व्हाटएवर ह्यूमन राइट्स आर देयर, हाउ मेनी ह्यूमन राइट्स आर देयर, तो वो क्या है? वो यूनिवर्सल वैल्यू है। दैट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सोसाइटी ओनली। यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है 1948 का ह्यूमन राइट्स के लिए, वो क्या है? दैट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू। जैसे कि इक्वालिटी यूनिवर्सल वैल्यू है, राइट। फ्रीडम, जस्टिस यूनिवर्सल वैल्यूज है, एप्लीकेबल टू ऑल द सोसाइटीज, क्लियर? बट देयर आर स्पेसिफिक वैल्यूज एज वेल। कैन यू डिफाइन सम स्पेसिफिक वैल्यूज? स्पेसिफिक वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, राइट। contextually bound and vary across culture, that is specific values, yes or no? जैसे कि यू टेल मी,
कोई सीनियर अगर घर पे आ रहा है तो उसका हम लोग पैर छूते हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर इंडियन सोसाइटी। यस और नो? यूएस में देखा है क्या आपने? पैर छू रहे हैं किसी की, हाथ जोड़ने नमस्कार करते हो, राम राम करते हो, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक वैल्यू you have with respect to your society. Handshake is not our value, वो दूसरी कंट्री के स्पेसिफिक वैल्यू है। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं ना। दिस इज वैल्यू और नॉट? वैल्यू है ना ये। हाँ, so this is a specific value to a particular society. So when it is contextually bound and vary across cultures, that is a specific value basically. बहुत सारे एग्जांपल्स है यार कि स्पेसिफिक वैल्यूज के, फैमिली क्रिएट करती है स्पेसिफिक वैल्यू, ये सारी चीजें। और दो टाइप है स्पेसिफिक वैल्यू के, वो देखेंगे। ये पैटर्न वेरिएबल जो है, वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस राइट नाउ, पैटर्न वेरिएबल, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा, कंफ्यूजिंग ये है, डिस्कशन है। वो जब टालकोट पार्सन डिस्कस करेंगे तभी पैटर्न वेरिएबल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो बस कि वी वोंट बी डिस्कसिंग पैटर्न वेरिएबल हियर। देन यू हैव टू एग्जांपल्स, again two types of values. What are those two types? End values and instrumental values. What are these end values and instrumental values? End value is what? Ultimate value is end value, है ना? जैसे कि example is very simple, happiness is the end value. इससे आगे कुछ है? Why you are working so hard? Why you want to achieve your dream of UPSC? You want to be happy. That is the ultimate goal ना? Satisfaction, happiness, justice. This is ultimate goal. So this is end value. इससे आगे कुछ होता है? Okay. Then you have what? Instrumental value. Instrumental values are values which we use as a tool to achieve the end value. काय नसू शकते? When you become happy, you become satisfied. Satisfy आपण होत नाही असं नाही म्हणायचं, सॅटिस्फाय मी होत नाही असं म्हणायचं, ठीक आहे? दिस इज नॉन पॉझिटिव्हिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह, ठीक आहे? ओके, डिफर करेल ना डेफिनेशन सॅटिस्फॅक्शनची. Therefore we don't consider satisfaction, take the happiness, ठीक है? Right? Happiness and justice, done. Okay. Instrumental value we it is a mean values, refer to beliefs and principles that are valued for the benefit and advantage they bring. ठीक आहे, सोडून दे. Desired end goals म्हणजे काय? Simple, used as a tool to achieve the end values. That is nothing but your instrumental values. Can you give me some example? Education is an instrumental value. Why you want to educate yourself? To earn more money. Let's take an example, to earn more money. Okay, why you want to earn more money? I want to be happy, right? So education, earning money, these are instrumental values. Okay, hard work, instrumental value. असं कोणी म्हणतंय का की इट इज लाइक अ मीन्स एंड एंड रे? यस और नो? हार्ड वर्क इज मीन्स टू अचीव एन एंड। ऐसा कोई बोलेगा कि सर मैं यूपीएससी का क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि सर बहुत मजा आता है इसीलिए कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है का? नो, राइट? So that is, you are working hard because that is an instrumental value to achieve something else. That will be your end value. Yes or no? Clear? So instrumental value and end values. यहाँ पे मैंने एक जॉन स्टुअर्ट मिल का एग्जांपल दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल्स कहता है कि लेट्स फोकस ऑन द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज मोर, ठीक है? Emphasize the instrumental value of actions and policies in promoting happiness and well-being for the greater number of good. यानी वही कहता है वो, what instrumental values are there used as a mean to achieve an end. Yes or no? Right? वही कह रहा है वो, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट अभी तक के लिए? हाँ, नाही, नक्की? ओके, जायचंय मग पुढे? चलो जाऊयात मग पुढे आपण. व्हॉट इज नेक्स्ट?
norms. What is norm? हाँ, invisible rules. हाँ, right, correct. Norms are basically societal rules and expectation that guide and regulate the behavior within a group or society. Right? Societal rules and behavior that guides us the individual behavior, basically. Understood? Regulate. Huh. It guide also and it regulates also, na? Yes or no? How to behave? My societal norms will tell me. And if I behave inappropriately, then that also my societal norm will tell me. Yes or no? You are not behaving. बरोबर का? So guide also and regulate also. Both the things are there. करेक्ट है लेकिन तो सोशल एटिकेट्स पता होंगे हमें कि जैसे कि ग्रीटिंग टेबल मैनर्स अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड्स इन डिफरेंट सोसाइटल कंटेक्स्ट शादी में जा रहे हो तो फिर आप ब्लेजर कोट पहन के जाओगे क्या नहीं ऑफिस में जा रहे हो तो शेरवानी पहन के जाओगे क्या नहीं सो दैट इज व्हाट दैट इज अ नॉर्म वी हैव विच इज अनरिटन बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड वो अगर ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हो विच इज अनरिटन अभी ये जो नॉर्म्स होते हैं ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे कि फॉर्मल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है फॉर्मल नॉर्म्स आर रूल्स बेसिकली और फॉर्मल नॉर्म्स वी कैन से आर लॉज बेसिकली सुनो कॉन्स्टिट्यूशन we are a secular country we are a sovereign country these are what formal norms are you understanding right and informal जो अभी मैंने कहा कि which dress code you have to wear when you go to the school function that is a informal right formal informal and obviously they vary across the culture group or societal setting yes or no do they बदलतात का सोसायटी नुसार एवरी कंट्री कैन नॉट बी द सिक्युलर कंट्री ना तो फॉर्मल भी हो या इनफॉर्मल भी हो दोनों चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी यस जैसे कि ट्रैफिक लॉज क्या है फॉर्मल लॉज है फॉर्मल नॉर्म्स है इमल डरखाइम स्टडी करते हैं तो सोसाइटल नॉर्म्स की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली फंक्शन ये पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव होगा ना अगर सोशल नॉर्म्स है तो रादर पॉजिटिविस्ट विल स्टडी द सोशल नॉर्म्स ओनली यस और नो हार्वर्ड बेकर ये सेकंड नेम है अपने पॉजिटिविस्ट के लिस्ट में जो हमें सिलेबस में नहीं है लेकिन वो लिखना है studies the see he studies the deviant behavior challenge and redefine the social norms influencing the societal reaction and legal responses इसका मतलब क्या है what is this deviant behavior now you tell me deviant behavior का मतलब क्या हो सकता है deviant का डिक्शनरी मीनिंग क्या है he is a deviant person deviant का मतलब होता है not agreeing to the social norms basically yes or no do you find these people in the society those are deviant in their attitude समाज के नियम मुझे हाँ नहीं लगते हाँ मला कोणत्याच समाजाचे नियम मान्य नाही मैं मेरा मन का राजा हूँ right so deviate not necessarily negative people okay because there are both examples are there positive is positive वाले deviant people and negative वाले deviant people for example criminals are also deviant yes or no they don't follow the societal norms right they don't follow the societal norms so criminals are deviant people but social reformers are also deviant yes or no
दे ऑल्सो हैवंट फॉलोड एनी सोशल नॉर्म्स बैक देन, इसीलिए तो रिफॉर्म हुए ना। राजाराम मोहन रॉय डेविएंट, राइट। महात्मा ज्योतिबा फुले डेविएंट, right? Gandhiji deviant. Okay, so these are not bad people, na? So deviant means not negative only. Deviance is not a negative concept, please understand this. Okay, deviance is just you are not following the established social norms, that is deviance basically. You are going against the flow, that is deviance. तो in a way आप सारे लोग भी deviant हो गए ना, you are going against the flow ना, you have not chosen the conventional path of your career, yes or no? So you are also deviant. I am also deviant. अच्छी खासी आईटी की बहुत ज्यादा पैकेज वाली नौकरी छोड़ के ये करने बैठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सारी चीजें. So we all are deviants in a way, yes or no, right? So deviant behavior that challenges and redefine the social norm, influencing the societal reaction and legal responses. तो समझ में आ रहा है अभी कि कुछ deviant behavior legal responses भी होंगे ना, yes or no? उस पे criminals, yes or no? तो इसीलिए कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जांपल दिया है कि नॉर्म्स रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग, तो ये सोसाइटल नॉर्म्स डायनामिक भी होते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी भी होते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोशल फेनोमेना भी होते हैं, यस और नो, राइट. कल्चरल नॉर्म्स सराउंडिंग जेंडर रोल्स आइडेंटिटीज आर इवॉल्विंग, जैसे कि अभी एलजीबीटीक्यू राइट्स, यस और नो, एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए जो फाइट हो रही है, दैट इज व्हाट वी आर चेंजिंग आवर सोशल नॉर्म्स, यस और नो, राइट. ये सारी चीजें, तो जैसे कि अभी नॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया, तो उसका अपोजिट वर्ड है नॉर्मलेसनेस. क्या होता है नॉर्मलेसनेस? व्हेन देयर आर नो सोशल नॉर्म्स इन द सोसाइटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड नॉर्मलेसनेस. तो ऐसे होता है क्या सर? ऐसे कब होगा सर? एवरी टाइम वी हैव अ व्हाट, एवरी टाइम वी हैव द सिचुएशन दैट विल हैव अ सोसाइटल नॉर्म, नो? ऐसा कब सिचुएशन होगा कि जिस वक्त नॉर्म्स ही नहीं है, सोसाइटल नॉर्म्स? ते तर खूप मोठं झालंय, छोटे मोठे उदाहरण सांगायचे रे. हाँ, हाउ कम यू आर नॉट? व्हेन यू बॉर्न यू बिकम द पार्ट ऑफ सोसाइटी. ओके, इच्छा असली काय नसली काय, यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो डोंट रीड, थिंक. व्हाट डू यू थिंक कि when there will be a situation of normlessness, that there are no norms in the society? हाँ, very good. When there is a emergency or crisis like situation in the society, COVID-19 again, yes or no? Any economic crisis, okay, बरोबर का? कोविड-19, इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ भी हो, 2008 वाला क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर दूसरे कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, वॉर लाइक सिचुएशन है, सो दैट इज द सिचुएशन व्हेन योर सोसाइटी बिकम नॉर्मलेसनेस. कोविड के वक्त देखते थे क्या कि किसका मास्क है, या फिर बाजू में कौन से जात का है, कौन से धर्म का बैठा है? हाँ, नो. सो वी डोंट हैव societal norms back then during the pandemic crisis, yes or no, right? तो नॉर्मलेसनेस बेसिकली इज व्हाट इज नोन एज अ, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग सोशियोलॉजी में, जैसे कि मैंने अभी कहा कि थोड़े फैंसी वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग. नॉर्मलेसनेस तो सिंपल मीनिंग है, डेफिनेशन सिंपल वर्ड है, तो वी यूज द वर्ड एनोमी. ठीक है, वी यानी पहली बार यूज किया इमल डर्क है, ठीक है, एनोमी. दैट रेफर्स, एनोमी इज अ कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी दैट रेफर्स द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा कि इमाइल डर्कहाइम ने इंट्रोड्यूस किया है, फिर मर्टन ने उसको ज्यादा इलेबोरेट किया था. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको कहा कि मर्टन ने इलेबोरेट कैसे किया. व्हाट आई टोल्ड यू, we have the functions, manifest function and latent function. So we have the not only function, Merton says social institutions has the dysfunction also.
Okay, and when the social institution will have dysfunction, when there is anomie or normlessness in the society. What is dysfunction? वही तो मैंने कहा कि स्कूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कूल, या फिर एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, give the knowledge. Okay, knowledge, giving the knowledge is a manifest function. Okay, socialization of children is a manifest latent function. ठीक है, of education as an social institute. What is a dysfunction? अगर उस स्कूल में लादेन हो तो दैट इज अ डिसफंक्शन ना, देन यस और नो, बच्चे फाइट कर रहे हैं एंड सम स्टूडेंट डेवलप्स द क्रिमिनल mentality or criminal attitude or criminal mindset in the school, so that is a dysfunctional aspect, okay, of the school or education. कोई टीचर है, बहुत बार तो ये न्यूज में सुनते हैं ना हम लोग, कोई टीचर ने बहुत ज्यादा मार दिया बच्चे को, ये सुनो, इतना पीटा कि फिर वो डायरेक्ट नेशनल न्यूज में उसने सुसाइड कर दी बच्चे ने. डिसफंक्शन, डिसफंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सुनो, और इंस्टीट्यूशन एज एजुकेशन. समझ में आ रहा है? ये सुनो. So when there will be a dysfunction, then there will be a normlessness in the society. Yes or no? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इलेबरेट करते हैं आर्के मर्टन, इंट्रोड्यूस करते हैं ये वर्ड इमाइल डर्कहाइम, लेकिन इलेबरेट करते हैं आर्के मर्टन. ठीक है, तो ये देखेंगे जब आर्के मर्टन डिस्कस करेंगे उस वक्त ये डिटेल देखेंगे. अंडरस्टूड नॉर्मलेसनेस? तो अभी के लिए व्हाट इज नॉर्मलेसनेस? हाँ, no social norms, right? That is normlessness. When the normlessness will happen, when there will be a crisis like situation, or when there will be a rapid social change. When there will be a rapid social change, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सर क्या हुआ था यूरोप में, व्हाट हैड हैपेंड, ये सारे रेवोल्यूशन हुए थे, कमर्शियल रेवोल्यूशन से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. ओके, तो ये क्या हो रहा था, रैपिड सोशल चेंज हो रहा था. जब सोसाइटी में रैपिड सोशल चेंज हो रहा है उस वक्त नॉर्मलेसनेस होगा. आई टेल यू एन एग्जांपल. मनोज जरांगे पाटील यांचा चळवळ, बरोबर, व्हाट इज दैट, फॉर अ फ्यू टाइम it has created the normlessness in the society. Yes or no? अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. हाँ, अरविंद केजरीवाल जहां बॉर्न हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी जहां बॉर्न हुई थी, राइट? So that situation, normlessness, they have created the chaos. So when there is a rapid social change, right, so that creates a normlessness situation in the society. Okay, but that is for a, what we can say, that is for a few time, है ना? We can say normlessness in the society due to social reform is for the certain period of time. That is not a permanent phenomena as such. Understood? Yes or no? Or do you agree on this or not? Tell me first that. When there is a social change, अन्ना का जो मूवमेंट हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो कुछ दिनों के लिए नॉर्मलेसनेस था ना, वो अभी तक चल रहा है क्या? नो, सिंपल. So when there is a rapid social change or when there is a economic crisis also, normlessness is a short time duration phenomena. Please understand this thing. Or do you agree or not? First tell me that. Huh? Yes, tell me. No, you don't agree on this? सस्टेनिंग असतात म्हणजे? हाँ, obviously it sustains for a long period of time. Introduction of artificial intelligence in your society, is there is a change in society? Definitely. Yes or no? We are using more machines, and in future after 10-20 years
Machine will be our partner. Most of the job will get replaced by the AI machines. Yes or no? So that is a social change, and it will be permanent, not momentary. But for some time, some part of a time, it will create a chaos like situation, because we don't understand ki how to manage that situation. है ना? हा नवीन काहीतरी एआय रोबोट आलाय, इंट्रोड्यूस झालाय. मग आता त्या रोबोटने जर एखाद्याचा मर्डर करून टाकला, but do we have a laws in your IPC and CRPC? No. If machine kills some person, so you will frame those laws then. बरोबर? मग एकदा लॉज फ्रेम झाले की मग झालं, मग नॉर्म सेट झाल्या तुमच्या लीगल नॉर्म्स, राईट. सो नॉर्मलेसनेस सिच्युएशन मोमेंटरी असते. असं नाही की ती 15 दिवसासाठी असेल का 1 वर्षासाठी असेल. इट विल बी देअर, बट फॉर अ शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम. So then the society itself will come with the social norms, legal norms. Yes or no? Right? There are the other institution, family पासन politics पर्यंत. All these institutions will act in coordinates to create a social norms. Yes or no? To control that normlessness situation. Understood? Yes or no? Clearly understood? Okay, great, good. See, तुम्ही असे प्रश्न विचारणार तेव्हाच क्लिअर होईल बरं का. Please ask the questions. Understood normlessness? Again, Durkheim, rapid social change, industrialization, which weakens the social norms, right? That created the normlessness situation in the society. ठीक आहे, कोविड वगैरे झालं. ओके, डन. आय थिंक लेट स्टॉप हिअर. ओके, जड होईल नाही तर खूप अजून जास्त पुढे गेलो तर. ओके, विल स्टॉप हिअर फॉर द डे. विल कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग टर्मिनॉलॉजीज टुमॉरो. ठीक आहे. तुमचं टास्क काय आहे? व्हॉट इज युअर टास्क? है ना? आय जस्ट टू what what thinkers? That is not the task. Task is whatever terminologies we had discussed in these 2 hours. What you have to do? You just have to read those, है ना? Take a separate page, write in your words. Okay. I need only definition. It may be 2 lines, it may be 3 lines, it may be 1 line. Doesn't matter. Doesn't make any difference. Okay. Whatever terminologies we had discussed, just write the definition. Don't give me thinkers, don't give me examples. Those are for the sake of understanding. Whatever thinkers are there, we'll have to discuss those thinker in the subsequent discussion. Okay. ते लिहायचे नाही. Just write the definition. Okay. किती वेळ लागेल? एक 12-15 तर टर्मिनॉलॉजी डिस्कस केले आपण. किती वेळ लागेल? Hardly half an hour. Half an hour or 40 minutes you will consume. But whatever you understand out of it, the outcome is huge. है ना? See, in your answers, now you थोड़ा सा एक glimpse आला असेल, you have to use these words in your answers. Okay, then your paper will become the sociology wala paper, optional wala paper. Okay, therefore we are discussing this. You will be familiar with these terminologies. So then it will be easy for me as well in the subsequent sessions. है ना? I don't have to fight कि अरे interpretativist क्या होता है. Okay, so you'll have a rough idea. We'll go into the depth obviously, but you will have at least a rough idea about these terminologies. So understood your task. So for the next 2-3 days you have to do the same. And जिन भी लोगों ने अभी तक सिलेबस लिखा नहीं है, ओके, कितने लोग हैं कि जिन्होंने मैंने जो टास्क बताई थी पिछली बार फर्स्ट सेशन में, you have to write the syllabus, okay, at least 5 times, है ना? So do it. Write the syllabus, send it to me. Very few people have sent me the syllabus. Okay, so please do it. That is just for your sake, your benefit, and not mine. ठीक है? So we'll stop for the day. We'll continue tomorrow at the same time. ठीक है? चलो, bye bye. हाँ, yes, प्रेरणा. Good question. Now I'll discuss your question. कोणाला ऐकायचं असेल तर ऐका. यांचा प्रश्न आहे, प्रेरणाचा छान प्रश्न आहे की डर्किम स्टडीड सुसाइड बट इट इज अन इंडिव्हिज्युअल थिंग, देन हाऊ इट इज he is what positivist, right? That is a good question. So I would say he studied the suicide, that is correct, but he gave the 4 methods, or what we can say 4 types of suicide.
ही स्टडीड द सुसाइड इन द मॉर्चरी. ओके, जे शवगृह असतं तिथला डेटा कलेक्ट केला. ही स्टडीड द सुसाइड पॅटर्न बाय द डेटा फॉलोड गिवन बाय पोलीस स्टेशन्स. सगळीकडनं डेटा कलेक्ट केला. ही गेट द डेटा अँड ही स्टडीड एव्हरीथिंग. And then he come up with the conclusion that in the world there are 4 types of suicide we have. We can prescribe the suicide in 4 types only. या 4 प्रकारांपेक्षा सुसाइड दुसऱ्या प्रकारात कुठल्याच प्रकारात बसत नाही. जगात कोणतीही सुसाइड घ्या तुम्ही, या 4 प्रकारांमध्ये बसते. म्हणजे काय करून टाकलं? He has objectivized the phenomena called suicide. Yes or no? And universalized the phenomena called suicide. Therefore we say he is a positivist. Okay, so he himself said that suicide is not the individualistic phenomena. Okay, there are other conditions like regulation, societal regulation and societal integration, because of which people commit suicide. I'll tell you one example. For example, if a certain person is too much integrated with the society, then he may commit the suicide. He has given the example of soldiers. Soldier is too much integrated with the society, na? Rashtravad, patriotism, too much integrated with the society. So he'll do everything to save his society. Soldiers, है ना? Right? Then if a person is too much isolated from the society, he can also commit the suicide. The extreme end of integrated. Too much isolated. Old age people committing the suicide. तुम्ही ऐकलंय का या न्यूज की पुण्यात पण फ्रिक्वेंटली 6 महिन्यातून एकदा ही न्यूज येत असते की पुण्यातल्या ह्या भागात उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये राहणारे हे आजोबा यांनी आत्महत्या केली. का बरं केली? कारण 4 महिन्यापासून आजोबांची कोणी बोलायलाच नव्हतं. टू मच आयसोलेटेड फ्रॉम द सोसायटी, टू मच इंटिग्रेटेड अँड टू मच आयसोलेटेड. देन टू मच रेग्युलेटेड. दुसरा टॉपिक आहे रेग्युलेशन. हे 2 प्रकार झाले इंटिग्रेटेड वरून, इंटिग्रेशन वरून. दुसरा प्रकार रेग्युलेशन वरून. टू मच रेग्युलेटेड बाय द सोसायटी. टू मच रेग्युलेटेड बाय द सोसायटी की आय एम बाउंड बाय द सोसायटल रूल्स अँड नॉर्म्स सो ड्रास्टिकली. मी इतका बाउंड आहे की मी जर त्या नॉर्म्सच्या विरुद्ध जातोय याचा अर्थ आय एम कमिटिंग अ क्राईम. So I commit the suicide. If I don't qualify for the IITs, so I commit the suicide. Yes or no? Too much societal norm, too much regulation, right? My student suicide सगळ्या ह्या कॅटेगरीत बसतात. And there is zero regulation. Zero regulation is what? Normlessness, anomic situation. म्हणून डरखाईमने अनोमी शब्द दिला ना, नॉर्मलेसनेस. तो तिथे सुसाइड मध्ये. तो नॉर्मलेसनेस, देर आर नो नॉर्म्स. इकॉनॉमिक क्राइसिस झाला. आई हैव इन्वेस्टेड सो मच इन स्टॉक मार्केट. अभी स्टॉक मार्केट इतना गिर गया, क्राइसिस आ गया, तो नाउ आई हैव टू कमिट द सुसाइड. सो आई कमिटेड द सुसाइड. नॉर्मलेसनेस सिचुएशन. Yes or no? So these are only 4 categories of suicide we have in the world according to Durkheim. So he has objectified the phenomena called suicide. Therefore, he is a positivist, and we say suicide is a positivist phenomena according to Durkheim. But obviously, non-positivists deny this thing. है ना? ते Durkheimच्या वेळेस बघू. ठीक आहे? चलो, let's stop.